جی آنریبل سینیٹر مشتاق صاحب یاد کیا میں یہ جو ابھی ترامیم ہوئی ہیں، ایک تو میں نے ترامیم دی تھی واٹس ایپ کے اوپر کچھ، لیکن میں نے ابھی جب رپورٹ دیکھا تو وہ انکارپوریٹ نہیں کی گئی ہے. کچھ اس میں اصلاحات کی گئی ہیں لیکن بہت مائنر قسم کی ہیں اور سپرفیشل قسم کی ہیں. جو ایکٹ کا اسپرٹ تھا وہ اسی طرح برقرار ہے جو کہ پہلے دن تھا. اگر اس کو ہم نے اس انداز سے پاس کیا تو اس سے پورا ملک ایک کینٹونمنٹ اور ایک چاونی بن جائے گی، اور اس سے غیر معمولی اندھے اختیارات وہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کے پاس آ جائیں گے، جس سے بشری حقوق، سیاسی آزادیاں، انسانی آزادیاں اور میڈیا کی آزادی شدید طور پر متاثر ہوگی. اور میں اس کو کہوں گا کہ اگر قانونی مارشل لاء کی کوئی اصطلاح ہے، اگر کوئی ہے قانونی مارشل لاء کی اصطلاح تو اس کے نتیجے میں آئے گی. میں چند چیزیں اٹھاتا ہوں، مجھے منسٹر صاحب ذرا اس کا جواب دیں. میں نے یہ امینڈمنٹس جمع کرائے ہیں، یہ 6 امینڈمنٹس میں نے جس پہ سب امینڈمنٹس بھی ہیں یہ جمع کرائے ہیں. آپ دیکھیں جو آپ پہلے صفحے پر آپ نے لکھا ہے ڈاکومنٹس انکلوڈ اینی ریٹن ان ریٹن. ان ریٹن میں تو آپ سادہ کاغذ بھی ہے، صاف کاغذ بھی ان ریٹن ہوتا ہے. پھر آپ دیکھیں میں لا کا آدمی نہیں ہوں لیکن آپ نے پہلے میں لکھا ہے میمورینڈم ایٹسیٹرا. اب قانون میں ایٹسیٹرا کا لفظ نہیں ہوتا، قانون میں یہ کہا ہے. یہ تو آپ نے ایک ایسی چیز رکھی ہے کہ کوئی بھی چیز وہ شامل کر سکتے ہیں. قانون تو بلیک اینڈ وائٹ میں بڑا کلیئر ہوتا ہے، اس میں تو ایسی چیزیں نہیں ہوتی. پھر آپ یہ دیکھیں جو صفحہ نمبر 2 پہ آپ دیکھ لیں جو ڈی کی نمبر 4 ہے کہ اینی پلیس آکوپائڈ بائی آرم فورسز فار دا پرپز آف وار، گیمز، ایکسرسائز، ٹریننگ، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ. تو بھائی ان کے جو تعلیمی ادارے ہیں، این ڈی یو ہے یا آپ کا ایئر یونیورسٹی ہے یا آپ کی باقی ادارے ہیں، آپ نے اس کو بھی اس میں شامل کیا. پھر آپ انیمی کی ڈیفینیشن میں آ جائیں. انیمی کی ڈیفینیشن میں آپ نے نان اسٹیٹ ایکٹرز کو بھی، یا تو آپ ڈیفینیشن میں نان اسٹیٹ ایکٹر کو ڈیفائن کر لیں. واٹ از دا نان اسٹیٹ ایکٹر؟ اگر ڈیفائن نہیں ہے پھر آپ یہاں لکھیں عام نان اسٹیٹ ایکٹرز، انسا، عام نان اسٹیٹ ایکٹرز. وہ تو آپ نے سارے این جی اوز کو بھی ڈال دیا اس میں، سارے جو خیراتی کام کرنے والے ادارے ہیں آپ نے اس میں بھی اس کو ڈال دیا. تو یا تو نان اسٹیٹ ایکٹرز کو آپ ڈیفائن کریں یا انسا لکھ لیں، عام نان اسٹیٹ ایکٹرز، اس کو کر لیں. اسی طرح میں نے یہ کہا تھا مسٹر چیئرمین کہ آپ اس میں ایڈیشن کر لیں 2A کا. وہ ایڈیشن میں کیا کرنا چاہتا تھا؟ وہ یہ تھا the provision of this act shall be constituted, interpreted, applied and implemented subject to the provision about fundamental rights contained in chapter 1 of part 2 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, particularly article 9, 10, 10A and 14. یہ آپ شامل کر لیں اس میں 2A کہ بھئی یہ قانون جو ہیں، یہ جو فنڈامنٹل رائٹس کا ہماری چیپٹر 1 پارٹ 2 میں دیے گئے ہیں، اور اسپیشلی آرٹیکل 9، آرٹیکل 10، آرٹیکل 10A، آرٹیکل 14 اس کو پیش نظر رکھا جائے گا. پھر اسی طرح مسٹر چیئرمین اس میں جو آپ دیکھیں کہ صفحہ نمبر 4 پہ آپ آ جائیں کہ اس میں بھی بہت سی چیزیں ہیں جس کو میں اومٹ کرنا چاہتا ہوں. پھر اس میں جو ان آتھورائزڈ ڈسکلوجر آف آئیڈینٹی ہے جس کی طرف منسٹر صاحب نے اشارہ کیا، a person shall commit an offense who intentionally acting in any manner prejudice to public order or safety. اب public order or safety یہ کیا چیز ہے؟ مطلب آپ نے اس کو بھی اس میں ڈال دیا. تو یہ تو آپ نے ایک ایسی چیز کی ہے کہ پورا معاشرے کو آپ اس کے اندر لے آئے اور ان کو غیر معمولی اختیارات دیے گئے ہیں. اسی طرح جو قانونی شہادت ہے اس کو اس میں ایڈ کرنا چاہیے کہ جو بھی وہ ہوگا وہ جو قانونی شہادت ہے اس کے مطابق کیا جائے گا. تو یہ میں نے اپنی امینڈمنٹس میں یہ ساری چیزیں ڈال دی ہیں. اگر آپ نے اس حالت میں اس کو پاس کیا، میں پھر خبردار کرتا ہوں تو اس کے نتیجے میں میڈیا، بشری حقوق کی آزادی، انسانی آزادی، جمہوری آزادی، سیاسی آزادیاں سب خطرے میں پڑ جائے گی. غیر معمولی اندھے اختیارات انٹیلیجنس ایجنسیوں کو مل جائیں گے. نوابزادہ عمر صاحب، سر میں چاہتا ہوں اکٹھے ہی جواب دے دیں. سر آنریبل سینیٹر نوابزادہ عمر جو بالکل آخری بینچ پہ، آپ کا بھی کوئی حق کے بات کریں پلیز. بہت شکریہ چیئرمین صاحب. سب سے پہلے جیسے کہ یہ پہلے بل آیا تھا، صاحب وہ آپ کی ہی پارٹی کے، اگر آپ اجازت دیں تو ان کو دیں، ورنہ دونوں لائنیں آگے والوں کی ہے بس. جی شہر رحمان صاحب نے اجازت دے دی، آپ بولیں پلیز. جیسے یہ بل پہلے لے ہوا تھا
जनाब चेयरमैन साहब, इसमें जो बातें लिखी गई थी या इदारों को जो इख्तियार लिखा गया था, मैं तो ये समझता हूँ कि इस अपर हाउस में ऐसे बिल्स ले करना भी गलत है, जमहूरियत के खिलाफ है। ये इसकी एक वजह है चेयरमैन साहब, ये आज जिनको 70 साल बाद ये चीज़ आ रही है, लेकिन बलूचिस्तान में 1947 के बाद से आज तक वही हो रहा है। आज तो ये कानून बनाकर हमें उनके हवाले कर रहे हैं, हम बगैर कानून के उनके हवाले हैं। जो भी आज, जैसे अभी हमारे फाजिल मेंबरान ने कहा कि इसमें ऐसी चीज़ें भी है कि अगर उनको ज़मीन किसी भी पर्पज़ के लिए चाहिए होगी वो हड़प करेंगे। PAF क्वेटा में 8000 एकड़ हमारे लोगों की उसने कब्जे में रखी है आज से 30 साल 40 साल से, लेकिन किसी न इंस्टीट्यूट के हवाले से न किसी जंगी पर्पज़ के लिए, लेकिन ये उसके कब्जा में और कोई रिलीफ नहीं दिया गया हमारे लोगों को। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें चेयरमैन साहब हमारी आज की ये गवर्नमेंट जो कर रही है, जो जाते जाते अपने लिए जो फंदे बना रहे हैं, ये कल जमहूरी निज़ाम पे या इन पे अगर ये बात करेंगे तो इसी ऐवान पे यही बिल इनके सामने होंगे कि ये इन्होंने पास किए। लिहाजा इस चीज़ों के लिए जनाब चेयरमैन साहब, इसमें एक्ट्स में ये चीज़ें भी लानी चाहिए कि अगर कोई इदारा नाजायज़ किसी को किसी भी मकसद के लिए उठाता है या उसको रखता है, उसकी क्या सज़ा होगी। अगर पुलिस किसी के खिलाफ कोई फेक FIR करेगा या कोई किसी की ज़मीन हड़प करेगा तो उसके लिए क्या सज़ा होगी। ये चीज़ें कुछ भी नहीं है, लेकिन एज अ पॉलिटिकल बंदा अगर कोई किसी के खिलाफ बात करेगा या किसी ने किसी को उठाया, उसके लिए इन सारे रूल्स हमारे अवाम और हमारे पॉलिटिशियंस के लिए रख रहे हैं। हमें चाहिए कि हम अपने इदारों को भी कंट्रोल में रखें, हमें चाहिए कि उनके लिए भी सज़ा मुख्तस हो इस ऐवान में, तब ये चीज़ें अवाम भी मानेंगे और पार्लियामान भी मानेगा इसको। थैंक यू जी। जी सर, मैं कहता हूं इकट्ठे ही सबके जवाब दे दें ताकि फिर बिल पेश कर देंगे। ऑनरेबल सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब। बहुत शुक्रिया जनाब चेयरमैन। तारड़ साहब मेरे ज़ाती दोस्त हैं, इसलिए मैं बिलीव करता हूं कि वो जो कुछ कह रहे होंगे वो दुरुस्त कह रहे हैं। मुझे बहुत प्यार है उनसे, बहुत मोहब्बत है, और वो ये कह रहे थे कि जी इसमें बहुत ज़रूरी जो इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है इस बिल के हवाले से। तारड़ साहब के खिलाफ बोलना इसलिए आहिस्ता बोल रहा हूँ, डर लगता है। तो यार मैं अपने से बातें कर रहा हूँ तो इतना मैं डरता हूँ सर। बात आदिर साहब मोबाइल रखते हैं या मैं इस मोबाइल को आज बाहर भिजवा दूं? सर इसकी बहुत ज्यादा जरूरत जो है मेरे भाई ने, तारड़ साहब ने बताई, इतनी ज्यादा जरूरत कि मुझे एहसास होने लगा कि ये जरूरत जो है ये 15 महीने पहले इनको पता होनी चाहिए थी। आज जब जाने में 4-5 दिन रह गए हैं और उसके बाद पता नहीं किसकी हुकूमत होगी, उन्हीं की होगी, कहते हैं उन्हीं की होगी, नहीं उनसे मुराद उनकी है जिनका नाम नहीं लेते हैं या तारड़ साहब। चलिए, तो सर उनके लिए अगर हम किसी और के लिए ये इतनी ज़रूरी अमेंडमेंट्स जो ना इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं तो भी गलत है, और अगर हम देर कर रहे हैं तो भी ये जो ना हमारी कारकर्दगी पे सवालिया निशान यकीनन है। और इसके साथ जो है ना वो आज खड़ा होना, नवाबजादा ने कहा कि जी ये कल हमारे लिए फंदा होगा, हमारे लिए तो खैर वैसे ही फंदा है। आप हमारे यहाँ तो किसी कानून की ज़रूरत नहीं है, बहुत से लोग जो है ना वो मिसिंग हैं, उनके लिए किसी कानून की ज़रूरत नहीं थी, और जितने कानून मिसिंग हो जाएंगे उनके लिए ज़रूरत नहीं है। मुझे अभी वो शकील बलोच का मेंबर हैं साबिक इलेक्शन कमीशन के, उनका एक मैसेज आया, 2 लोग तुर्बत से मिसिंग हैं, नए हैं, ताज़े हैं, कुछ एक आध शहीद भी नया ताज़ा कर दिया गया है, वो भी है। तो अगर आप इस तरह से दस्तूर की मुखासमत में इख्तियारात देते जाएंगे, देते जाइए। हमारे लिए तो दस्तूर कल भी शायद ऐसी कोई हैसियत नहीं रखता था, हम पे अप्लाई नहीं करता था, ना कोई कानून अप्लाई करता था, हम उसका सब्जेक्ट नहीं है। हमें जिस वक्त जो जी चाहे जिस तरह से मर्जी हमारे साथ ट्रीट करे, हमें उस पर भी गिला नहीं है शायद, क्योंकि अब गिला करने की ज़रूरत भी नहीं रही। मगर कल ये दोस्त ये जो पहली 2 रोज़ में बैठे हैं, इस तरफ से हों या उस तरफ से हों, कल हम उनको कहा करते थे, आज हम इनको, अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को कह रहे हैं। कल ये सारे इनक्वानी इनका सब्जेक्ट होंगे। हम किसी कानून का पहले भी सब्जेक्ट नहीं होते हैं, आज भी सब्जेक्ट नहीं होंगे। आज भी इसको दुरुस्त कर लीजिए, आज भी इस पे रुक जाइए, शायद कल आप इस पे बच जाए। थैंक यू सर।
Honorable Senator Kurratulain Maree. सर आज तो इसी बिल पे प्लीज बात करनी है। दिस इज नॉट फेयर, क्योंकि मैंने दबाया था जब सैफुल्लाह अब्रो बात कर रहा था। फिर मैं बाद में बात देता हूं, फिर बाद में, फिर अभी अगर बिल पे बात करें। नहीं, मुझे बिल पे नहीं, मुझे उस पे बात करनी मैं है। आपको दे दूंगा बाद में। ओके, ठीक। थैंक यू। ऑनरेबल सेनेटर मौलाना फैज मोहम्मद साहब। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि जअल हाज़ा बलदन आमिनन वरज़ुक़ अहलहु मिनस समरात। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जनाब चेयरमैन, जिस मसले पे गुफ्तगू हो रही है, इस्लाम के अंदर इंसान के जान, माल, इज़्ज़त की हिफाजत, और उसमें जिस मुल्क के बाशिंदे हैं, अक़लियत में हैं, जैसे मुसलमानों के जान, माल, इज़्ज़त की हिफाजत की ज़रूरत है, उनके लिए कानून है। इसी तरह उन अक़लियतों के लिए जो मुस्लिम नहीं है, उनकी नेशनलिटी यहाँ की है, उनको भी ये हुकूक हासिल हैं। तो इसमें यह है कि ऐसे कवानीन कि जिसकी वजह से लोगों के ऊपर तकलीफ़ आ जाए, ये ठीक नहीं है। पहले हम ये देखें कि कितने हम लोगों की हिफाजत जान, माल, इज़्ज़त की कर रहे हैं। फिर ऐसे इख्तियारात होंगे, इससे ज़्यादा मसाइल बढ़ेंगे। और वैसे शरीयत में मुनासिब नहीं है, नाराज़ नहीं होना। मेरे ये जो सामने बैठे हुए हैं बुज़ुर्ग कहते हैं कि सकरात के टाइम पे जो वसीयत अगर कोई करे तो शरीयत उसकी वसीयत को बहाल नहीं करती। तो अब आखिर वक्त के अंदर ऐसे मसाइल पर बहस करना, चेयरमैन साहब, मैं समझता हूँ ये अब सकरात के टाइम पे ये आखिर दावाना इसकी सकरात मौलाना साहब। ऑनरेबल सेनेटर हाजी हिदायतुल्लाह खान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब चेयरमैन साहब। ये जहाँ पर तक इस बिल का ताल्लुक़ है, तो जनाब चेयरमैन साहब, एक तरफ तो हम इंसानी हुकूक़ की बात करते हैं, और एक लड़की जो रिजवाना के नाम से आप कल और आजकल उसके ऊपर बात हो रही है, उस रिजवाना के पास हर एक सियासी स्कोरिंग के लिए जाती हैं, वहाँ पे उसकी इयादत करते हैं, वहाँ पे उसकी हमदर्दी करते हैं, वहाँ पे जज के खिलाफ बात करते हैं और उनको सज़ा देने की बात करते हैं। लेकिन ये ठीक है, मैं समझता हूँ ठीक है, उनके साथ ज़्यादती हुई और ये होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये देखता हूँ कि बाजोड़ में जो 100 से ज़्यादा लोग शहीद हो गए, 100 से ज़्यादा लोग जख्मी, किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, किसी का सिर और उदान नहीं है, तो उसके साथ तो कोई अस्पताल में गया नहीं, न उसको कोई मतलब है टीवी पे दिखा दिया, न कोई उन्होंने ये बता दिया कि वो इसका कोई मतलब है कि लोगों को दिखा दे कि असरात हो गए। मैं इस बात पे हैरान हूँ कि उस अभी क्या करते हैं, अभी खाना खा लिया, अभी नहीं खाया, अभी ऑक्सीजन ज्यादा हो गया, अभी कम हो गया, डॉक्टर भी लगे हुए हैं, मीडिया भी लगे हुए हैं, 2 महीने से एक ही इस लड़की के पीछे, बेचारे उसको छोड़ते नहीं। और दूसरी तरफ हम ऐसे तरामीम लाते हैं जो इंसानी हुकूक के खिलाफ है, वो हम देखते हैं कि इंसानी हुकूक के खिलाफ है। और न ये इस्लाम भी इसका, जिस तरह मौलाना फैज़ मोहम्मद साहब ने बता दिया कि न इस्लाम भी इजाज़त देती इस बात की, और न मतलब है कि इंसानी जो हम माशरा है उसके भी नहीं देती। दूसरी तरफ लोग, मैं देखता हूँ कि आखिरी वक्त में, जिस तरह मौलाना साहब ने कहा, ये सकरात का वक्त है, ये ख़त्म हो रहा है, इन्होंने 5 दिन का काम मेरे भाई ने कि 5 दिन बाकी है, 5 दिन भी बाकी नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि 3 दिन बाकी है, मतलब है कि आज का दिन तो गुजर गया, 7 तारीख और 8 तारीख को, और फिर 9 को ख़त्म होने वाले, तो 2 दिन हो गए। तो इस 2 दिन में हम कौन सा वो बड़ा तीर मारेंगे कि मतलब है कि हम 1 साल से इसी तरह बैठे रहें और मतलब है कि अब आके हम ये करेंगे। तो जनाब चेयरमैन साहब, दूसरा मसला जो बड़ा आ रहा है वो हम ये कहते हैं कि 18वीं तरमीम के अंदर लोग जो है ना वो काम उन्होंने शुरू किया है। उसमें हम ये अभी से कहते हैं कि 18वीं तरमीम अगर बना है तो वो पार्टियों के जितनी भी पार्टी है पार्लियामेंट में, उन सब के मुतफ़िक़ा राय से 18वीं तरमीम मंजूर हुई है। ये ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है कि आम दस्तावेज है, हमने कोई कोने में पास किया। उसके ऊपर बाकायदा उस वक़्त
के सदर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब और जितना भी वहाँ के उस वक़्त के हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एनपी के जितने भी लोग थे, बस शमूली मुस्लिम लीग नून और जितने भी पार्टियां थे, सब ने मिल के इस 18वीं तरमीम को मंजूर किया। और ऐसे भी नहीं किया कि रातों रात किया, उसके ऊपर बिल्कुल एक कमेटी बनाई, फिर गौर करने के बाद मतलब है कि उन्होंने मुतफ़िक़ा तौर पर तो ये आईन पाकिस्तान जो 1973 का आईन है, उसके बाद ये दूसरा दस्तावेज है कि जो मंजूर हुआ और इसके वजह से आईन जो है ना अपने असल शक्ल में बहाल हो गया। तो मेरे ख्याल में इसमें कोई बिल्कुल चलना नहीं चाहिए। और मैं अपने मोहतरम जनाब जितने भी हुकूमत के हमारे यहाँ पे मिनिस्टर साहिबान हैं, उनको मैं अर्ज़ करूँगा कि आखिर वक्त में छोड़ दो इसको, बस ये बातें मत लाओ, ठीक है, आने वाले लोग जाएंगे और हो सकता है कि आप भी आ जाएं। तो और वो शायर कहते हैं कि जाते हो कहते हो क़यामत को मिलेंगे, क्या खूब क़यामत से हो गोया कोई न हो, तो इंशाल्लाह तो हम मिलेंगे आपके साथ। आज बहुत क़यामत की बातें हो रही हैं। जी मियां रज़ा रब्बानी साहब। जस्ट फॉर दिस शुक्रिया जनाब चेयरमैन, इस पे बहुत बात हो चुकी है, लिहाजा मैं नहायत ही मुख्तसर तौर पर 2-3 बातें सामने रखना चाहूँगा। एक तो जनाब चेयरमैन, इसकी ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का जो तरमीमी बिल है, इसमें सीक्रेट कितनी चीज़ें रखी हुई हैं वो तो इसके प्रीएम्बल से ही ज़ाहिर हो रहा है, because normally the preamble lays out the intent and purpose for which an amendment or an amending bill is being brought. और इसका जो preamble है, that reads, whereas it is expedient further to amend the Official Secrets Act 1923 in the manner and for the purposes herein after appearing. So it is not only short and crisp, it does not disclose as to what was the necessity for for amending the act. Number one. Number two, clause 2 के अंदर, with great respect to the honorable law minister, उन्होंने एक amendment वो लेके आए हैं जिसमें उन्होंने and related services को उसमें से निकाल दिया है। लेकिन अगर आप इसको वैसे देखें जनाब चेयरमैन, तो दिस कवर्स कॉन्ट्रैक्ट्स, agreements, memorandums, etc. related to procurement of supplies of or sales of mutations and related services, mutations and related services उन्होंने निकाल दिया है। लेकिन I stop here और इसको अगर आप रीड करें with the provisions of the Pakistan Army Act जो हमने अभी हाल ही में जल्दी में पास किया था, उसमें तमाम तर जो फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस हैं उनको हमने एक लीगल कवर दे दिया है। लिहाजा इफ़ यू रीड दिस विद दैट, तो ये बात सामने आएगी कि अगर as far as military equipment, military hardware is concerned, I have no problems. लेकिन इसके साथ अगर आप वो भी पढ़ेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि वो फैक्ट्री जो बिस्किट बना रही है या वो फैक्ट्री जो दूध बना रही है या दही बना रही है, उसको भी इसके साथ जो है वो असना जो है वो मिलेगी। सो मेरा ये ख्याल है कि ये तमाम चीज़ें जो हैं इसको करना चाहिए। और फिर जैसे सेनेटर मुश्ताक साहब ने पॉइंट आउट किया था कि प्रोहिबिटेड एरिया के अंदर अब आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मूवमेंट ऑफ ट्रूप्स भी चलें, ठीक है, बट इन कैमरा ब्रीफिंग्स, दैट इज ऑल्सो अ प्रोहिबिटेड एरिया। जनाब चेयरमैन, व्हाट आर वी डूइंग? आपने उनकी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वगैरह है उनको भी आपने प्रोहिबिटेड एरिया कर दिया। यहाँ पे आप कह रहे हैं कि इन कैमरा ब्रीफिंग्स भी जहाँ पे होंगी वो भी प्रोहिबिटेड एरिया है। फिर ऑफेंसेस के अंदर अगेन इट हैज़ ऑलरेडी बिन पॉइंटेड आउट बट आई वुड लाइक टू पॉइंट इट आउट अगेन कि पब्लिक ऑर्डर
has been included in clause 3. पब्लिक ऑर्डर का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, इससे इसका स्कोप बहुत बढ़ जाएगा. एंड कमिंग फाइनली टू द कंक्लूजन, जनाब चेयरमैन, insertion of section 6A that needs to be redrafted to the extent of the necessity explained by the Honorable Law Minister. I would agree, but I think it needs to be redrafted. ये इन्होंने अच्छा किया है कि अमेंडमेंट क्लॉज 9 को जो है वो इन्होंने डिलीट कर दिया है, वो एक अच्छा इक़दाम है. और आखिर में जनाब चेयरमैन मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि जो ये क्लॉज 12 में जो नई सेक्शन 16 बन रही है, which is the part to make rules. The federal government may make rules to carry out the purpose and object of this act. अब फाजिल ऑनरेबल लॉ मिनिस्टर साहब बिल्कुल दुरुस्त होंगे जब वो ये बात फरमाएंगे कि जी ये तो हर कानून के अंदर मौजूद होता है जिसमें रूल्स बनने की गुंजाइश होती है. लेकिन जनाब चेयरमैन, हमने तब भी देखा है और आप भी इस बात को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, फाजिल लॉ मिनिस्टर साहब भी बड़ी अच्छी तरह इस बात को जानते हैं, और मैं बीइंग चेयरमैन ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की कमेटी इस बात को बड़ी अच्छी तरह जानता हूं कि बहुत दफ़ा रूल्स ऐसे बनाए जाते हैं जो पेरेंट एक्ट के मुतरादिफ होते हैं, जो पेरेंट एक्ट से ज़्यादा पावर्स दे रहे होते हैं, और एक ऐसा सेंसिटिव लॉ जो है उसमें फेडरल गवर्नमेंट को ये पावर्स देनी कि वो इसके अंदर मज़ीद पेंटिंग के अंदर मज़ीद रंग जो है वो डाल सके बाय मेकिंग रूल्स, मैं समझता हूँ कि कम से कम इस लॉ के लिए सेक्शन 16 और क्लॉज 12 शुड बी ओमिटेड. थैंक यू मिस्टर ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर लॉज. बहुत शुक्रिया. मैं एक तो बहुत मशकूर हूँ फाजिल मेंबरान का कि उन्होंने इतना टाइम दिया और बड़ी अच्छी सजेशंस दी, और शायद फ्लोर ऑफ द हाउस पे डिबेट का एक फ़ायदा ये भी है कि कुछ चीज़ें जो हैं उनमें मज़ीद बेहतरी लाई जा सकती है तो लाई जाए. मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि पिछले दौर में क्या हुआ और क्यों हुआ और किस तरह से, ना हुकूमती बेंचों को और ना ही अपोजिशन बेंचों को कमेंट करने की इजाज़त थी, लेकिन ये क्योंकि नशरियात भी जा रही हैं, ये सारा ऐवान भी देख और सुन रहा है कि हमने जो कानून भी आपके सामने रखा है उसकी क्लॉज बाय क्लॉज रीडिंग ना सिर्फ कमेटी में हुई है बल्कि आज फ्लोर ऑफ हाउस पे भी हो रही है. तो जो एक ये अंधाधुंध वाला इल्ज़ाम है, कम अज़ कम उससे बरीयत का मैं इस हाउस से तकाजा करूँगा कि उससे हुकूमत को बरी कर दिया जाए कि कानून साजी अंधाधुंध हो रही है. इसकी हद तक नहीं मुश्ताक साहब, जो भी कानून आपके सामने रखा गया है, इवन मुस्तफ़ा इम्पेक्स की एक शिक भी अगर तब्दील कर रहे थे तो बताया गया है कि ये फेडरल गवर्नमेंट को प्रोविंशियल गवर्नमेंट से. सेनेटर रज़ा रब्बानी साहब से शुरू करता हूँ, पिछले ऑर्डर में जाऊँगा. मैं जहाँ तक तो रूल्स मेकिंग का ताल्लुक है, ये फेडरल गवर्नमेंट का इख्तियार है और फेडरल गवर्नमेंट का ही रहेगा, और फेडरल गवर्नमेंट मींस वफाकी काबीना. तो सर अगर 33 लोग बैठ के कोई गलत कानून बनाते हैं या रूल्स बनाते हैं तो हम सबको इख्तियार है कि हम उनको चैलेंज करें, उनको स्ट्राइक डाउन करवाएं. सर इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट है वो नोटिफिकेशन पे चल रही है, वो हमने मैजिस्ट्रियल कोर्ट्स को निकाल के स्पेशल जज सेंट्रल जो हैं उनको ये इख्तियारात देने हैं जो कि नोटिफिकेशन के ज़रिए हो रहे हैं. ऑथराइजेशन ऑफ जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम का कोई तरीका नहीं बना हुआ सर. पहले कोई एक ऑफिसर उसको इन्वेस्टिगेट करता है, अब हमने उसमें ये भी डाला है कि डायरेक्टर जनरल FIA जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाएंगे. उसके लिए सर रूल्स बनाने होंगे, वो चैप्टर देना होगा कि वो किन केसेस में बना सकते हैं और कैसे बनाएंगे. सर शफाफियत आती है जब रूल मेकिंग होती है. बाकी एप्रीहेंशन इसलिए है कि हमने 70 साल ये तकलीफ़ें देखी हैं, और मैं इस कानून को बलाए ताक रखते हुए आपसे सिर्फ ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इसे एक लम्हे के लिए बलाए ताक रख दीजिए कि ये कानून नहीं है. इस कानून को क्यों होना चाहिए था और ये क्यों इम्प्रूव किया गया. कोशिश तो ये की गई थी कि वो काम जो कि आम लोगों की नज़र में नामालूम अफराद करते हैं और फिर जो गुमशुदा अफराद हैं वो मिलते नहीं हैं, वो किसी कानून के धारे में आए, उन्हें कोई अदालत पूछने वाली हो, उन्हें कोई अथॉरिटी पूछने वाली हो. आप सब ने कहा
کہ یہ روش جیسے چل رہی ہے ویسے ہی چلنی چاہیے، اور انڈر دا لا ود دی وارنٹ آف میجسٹریٹ یہ اختیار انٹیلیجنس ایجنسیز کو نہیں دینا چاہیے. ہم نے اسے کاٹ دیا. دنیا جہان میں یہ اختیار انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس ہے، لیکن ہم نے اسے ختم کیا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو رائج الوقت پریکٹسز ہیں وہ جاری رہیں. یہ اس ہاؤس کی دانش ہے، فراست ہے، ہمارا سر تسلیم خام ہے. میں صرف تین چیزوں کی وضاحت کروں گا. جہاں تک تعلق ہے ایڈنٹی کا، میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ہم دہشت گردی کا شکار ہیں سر 20 سال سے. ہمیں تعصب کی اینک اتار کے اپنے جو فوجی جوان ہیں اور جو انٹیلیجنس ایجنسیز جو وار زونز میں کام کر رہی ہیں سر، ہمیں ان کی طرف بھی دیکھنا چاہیے. جو شہادتیں وہ دے رہے ہیں، جوان بچے ماؤں کے جو ہیں ان کے ہم لاشیں وصول کرتے ہیں. جناب چیئرمین، میں نے بیک گراؤنڈ بتائی کہ جب انہوں نے آپریشن شروع کیے بہت دفعہ ایسا ہوا کہ اعلان کرائے گئے، اشتہار لگائے گئے، تصویریں لگوائی گئیں، سوشل میڈیا پہ ڈالا گیا کہ یہ جو انسپیکٹر ہے یہ آئی بی کا ہے، یا یہ جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہے یہ آئی ایس آئی کا ہے، یہ جہاں نظر آئے اسے قتل کرنا ہے ثواب ہے. تو جناب چیئرمین انہوں نے کہا کہ اسے 3 سال کے لیے سزا بنائی جائے تاکہ کوئی اس کے خلاف انکوائری تو ہو سکے، ورنہ پھر وہ گمشدہ کریں اور نامعلوم افراد آئیں تو یہ قانون کی منشا نہیں ہے. مشتاق صاحب نے کہا کہ آپ آرٹیکل 10 کو آرٹیکل 4, 9, 10A اور 14 کو اس میں ڈالیں. رضا ربانی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں سر، کسی قانون میں آئین کے آرٹیکلز کو ریپروڈیوس نہیں کیا جاتا. جو قانون آئین کے بنیادی فنڈامنٹل رائٹ سے ملیٹیٹ کرتا ہے وہ قانون تصور نہیں ہوتا، وہ سٹرائک ڈاؤن ہو جاتا ہے. اور اس میں وہ پوری کوشش کی گئی ہے کہ ایک ایک چیز کو رکھا جائے. سینیٹر رضا ربانی صاحب نے کہا کہ یہ جو بسکٹ بنانے والی فیکٹریاں ہیں، تو میں میونیشنز پڑھ دیتا ہوں سر، اس میں اگر بسکٹس اور روٹیاں آئیں گی تو میں جواب دے ہوں سر. ہم نے کلاس سی میں میونیشنز آف وار کو ایکسپلین کیا ہے، انکلوڈز دا ہول اور اینی پارٹ آف اینی شپ، سب میرین، ایئر کرافٹ، ٹینک، ویسل، سملر انجنز، آرمز، ایمونیشن، ٹورپیڈوز اور مائنز انٹینڈڈ اور اڈاپٹڈ فار یوز ان وار. تو سر وہ بسکٹ فیکٹریاں نہیں سر آئیں گی اس میں. یہ صرف اس حوالے سے ہے. وار میں چنے اور بسکٹ جاتے ہیں، وہ میونیشن میں نہیں ہے. محترمہ سینیٹر رخسانہ زبیری صاحبہ نے کہا کہ یہ پرانا قانون ہے اور اس کے ذریعے اگر کوئی بہتری آ سکتی تھی لائی جائے. سینیٹر صاحبہ ہم نے اس میں انٹینشن کو انکارپوریٹ کیا ہے. پہلے کئی چیزیں تھیں ان کے بارے میں وضاحت ہی نہیں تھی. ورڈ نوئنگلی کو ڈالا ہے. ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا مجھے پتا ہے کہ اس میں مینزری ہم نے شامل کیا ہے. جی سر. آخری بات یہ ہے کہ جو آپ نے کہا اسے جرم بنایا جائے اور وہ سارا بتائیں. پولیس آرڈر 155، اب یہ سارے اختیارات کوئی فوجی افسر استعمال نہیں کرے گا، یہ لوکل پولیس کے اختیارات ہیں. اور اگر وہ ایکسیس کریں گے، پولیس آرڈر 2000 ہمارے ہاں رائج الوقت ہے، اس کے آرٹیکل 155 میں غلط سرچ سیر کے اوپر سزائیں بھی ہیں. 5 سال تک کی سزا ہے، غلط انٹری پہ سزا ہے، غلط گرفتاری پہ سزا ہے، سارا پی پی سی لگتا ہے. سر with this explanation I would very respectfully submit کہ اس کو پاس کیا جائے. It has been moved that the bill further to amend the Official Secret Act 1923, the Official Secrets Amendment Bill 2023 as reported by the Standing Committee be taken into consideration at once. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted. Second reading of the bill, clauses 2 to 12. The question is that clauses 2 to 12 do form part of the bill. Those who are in favor of it may say aye. Minister Sahab,